آج نہال صاحب کی برسی کے موقع پر یہاں موجود مقررین نے کچھ ایسی باتیں بتائی جو غیر سیاسی بھی تھی اور کہیں نہ کہیں سیاست سے ان کا تعلق تھا۔ ساتھ ہی نہال احمد صاحب کی شخصیت نہ صرف سیاسی، سماجی، تعلیمی بلکہ ہر شعبے میں ان کی خدمات ہے۔ صحافت کے شعبے میں جو مختار عدیل صاحب نے کہا جو ان کا کارنامہ تھا، میں چند باتیں ایک میرے باپ کی حیثیت سے جو میں نے محسوس کیا ساتھی نہال احمد صاحب سے، ایک ایسے باپ جنہوں نے کبھی بھی اپنی سیاسی رتبہ یا اپنی شخصیت، اپنی مقبولیت کا دبدبہ بھلے ہی انہوں نے پورے شہر میں بتایا لیکن بیجا کسی پر ظلم کرنے کا کام نہیں کیا۔ میں ہمیشہ دیکھتی تھی کہ ساتھی نہال احمد صاحب گھر میں جب رہتے تھے تو اپنی باتوں سے، اپنے زندگی میں جو حالات گزرے ہیں ان سے وہ واقعات بتایا کرتے تھے تاکہ ہم کو کچھ سیکھنے کو ملے۔ ایک وقت ایسا تھا کہ ہمارا ایک ساتھی تھا، نیا کارخانہ اس نے شروع کیا تھا۔ اب کارخانہ سنبھالنے کے بعد ایسا ہوا کہ لوگ ایڈوانس لیتے تھے مزدور اور چلے جاتے ہیں، تو اس بڑا نقصان ہونے کی وجہ سے ان کو کارخانے سے ہٹا دیا گیا۔ تو وہ بیٹھے تھے، صاحب دیکھے انہیں کیا ہوا، وہ بتائے ان کو ابا ایسا ہوا، ابھی ان کے والد ناراض ہو گئے۔ تو صاحب ایسا بولے کہ تمہارے والد ہیں؟ بولے ہاں میرے والد ہیں، میرے چاچا ہیں، وہ لوگ سنبھالتے تھے جب تک کارخانہ اچھا تھا، مجھ کو میں نہیں سنبھال پا رہا ہوں۔ تو صاحب بولے کہ جب میں چھوٹا تھا، مدرسہ میں جاتا تھا، اسکول جاتا تھا، اس کے بعد بچے ہوئے وقت میں کرانہ دکان میرے بڑے ابا کی تھی، میں کرانہ دکان پر بیٹھتا تھا اور جب نماز پڑھ کے ظہر کے بعد میرے بڑے ابا آتے تھے تو وہ دیکھتے تھے کہ میں نے کس کو ادھار دی، اور وہ دیکھتے تھے اور اس کے بعد بولتے تھے نہال احمد تم نے اس کو ادھار دے دیا، تم نے اس کو ادھار دے دیا۔ وہ بولتے وہ تو دینا پڑے گا نا، آپ کے پاس آتے تو آپ بھی یہی بولتے تھے۔ وہ صاحب بولے کہ میرے بڑے ابا نے جواب دیا ابے تیرے سے کوئی ادھار مانگنے آئے تو یہ بولا کر کہ میرے بڑے باپ آئیں گے میں ان سے پوچھ کر دوں گا۔ صاحب بولے کہ آپ کے پاس آتے تو آپ دیے ہوتے، بولے نہیں میرا بڑا باپ زندہ نہیں ہے، تیرا بڑا باپ زندہ ہے، تو کم سے کم میرے نام سے ٹال دیا کر۔ تو یہ ایک ان کی معمولی واقعہ میں انہوں نے بتا دیا کہ کس طرح اپنے بڑوں سے مشورہ لے کر کوئی کام کرو۔ معمولی باتوں میں ابھی 2 روز پرانی بات ہے، مولانا زاہد ندوی بیٹھے، میں میری بچی غلطی کی، میرے گھر میں کام کرنے والی خادمہ سے اما اس کو بولی کہ تم معافی مانگ، بچی میری معافی نہیں مانگ رہی تھی۔ میں مولانا زاہد ندوی صاحب کو بولی کہ میں ایک ایسے باپ کی بیٹی ہوں، اگر میرے والد سختی سے کچھ بول دیتے تھے ہم لوگوں کو یا ان کو لگتا تھا کہ شاید میں کچھ غلط بول دیا ہوں، بولی میں مولانا کو بول رہی تھی میرے ابا ہم لوگوں سے معافی مانگتے تھے کہ میں ایسا بول دیا، یہ غلط تھا، مجھے معاف کر دو۔ بولی ہم لوگوں کو اتنی شرمندگی ہوتی تھی جب وہ معافی مانگتے، لیکن وہ معافی مانگتے تھے کبھی وہ یہ نہیں سوچے کہ میں اس کا باپ ہوں، میں اس سے کیسے معافی مانگوں۔ تو ایک ایسا آدمی جو تمام عوام جن کو اپنی پلکوں پر بیٹھاتی تھی لیکن ان کے اندر ایک خاکساری تھی۔ لوگوں نے بتایا کہ صاحب نے اتنے تعلیمی ادارے بنائے۔ میں میرے والد سے سنا کرتی تھی کہ جب فارمیسی کالج مالیگاؤں شہر میں بنی، فارمیسی کالج میڈیکل کھل سکتی ہے جو ڈی فارمیسی ہوتا ہے اسی پر، جب مالیگاؤں میں فساد ہوا اور لوگ پریشان تھے دوائیں لینے کے لیے، تو صاحب ایسا بولتے تھے کہ مالیگاؤں شہر میں صرف ایک ہی میڈیکل اسٹور تھی، تاپڑیا، جس کی وجہ سے لوگوں کو اس طرف جانا پڑتا تھا جہاں پر غیر مسلم لوگ رہا کرتے تھے اور تنازعات جو ہے مسلمانوں میں اور غیر مسلم لوگوں میں ہوتے تھے، اس لیے تکلیف آتی تھی۔ تو جب صاحب عہدے پر آئے تو انہوں نے سب سے پہلا یہ کام کیا، انہوں نے خود سے وعدہ کیا تھا فساد میں کہ میں چند سالوں میں ایسا حال کر دوں گا کہ گلی گلی کے کونے میں میڈیکل اسٹور ہو۔ اور جب صاحب عہدے پر آئے تو انہوں نے فارمیسی کالج یہاں لائی، اور فارمیسی کالج لانے کے بعد یہ یاد رکھو صرف میڈیکل فارمیسی کالج گورنمنٹ کی کالج نہیں تھی بلکہ انہوں نے مائنرٹی کے نام سے رجسٹر کروا کے لایا تھا۔ مائنرٹی کے نام سے رجسٹر ہونے کا مطلب یہ تھا کہ نصیب قریشی وہاں کے پرنسپل تھے، انہوں نے مجھے بتایا کہ جب تک
कॉलेज नहीं आई थी, तब तक पूरे महाराष्ट्र में मुस्लिम बच्चों की तादाद 20-25 होती थी पूरे महाराष्ट्र में, और सिर्फ मालेगांव की फार्मेसी कॉलेज से 35 से 36 बच्चे मुसलमान रहते थे। इतना बड़ा कारनामा पूरे महाराष्ट्र में साथी निहाल अहमद साहब ने किया। वो सिर्फ एक तालीमी फायदा नहीं था, एक कौम और मिल्लत के लिए एक बहुत बड़ा तोहफा था जो साथी निहाल अहमद साहब किया करते। मैंने बताया कि भाई लोग जानते हैं साथी निहाल अहमद साहब ने मालेगांव शहर में बस्तियां बसाई जहां हिंदुस्तान में कहीं भी मुसलमानों पे जुल्म, सबसे महफूज मुकाम अगर किसी ने महसूस किया हिजरत करके आने के लिए तो वो मालेगांव शहर। उसकी वजह थी साथी निहाल अहमद साहब का होना। इतना दबदबा था कि चाहे वो भागलपुर के लोग हों, यूपी के लोग हों, चाहे दक्कन हैदराबाद के लोग हों, चाहे खानदेश के लोग हों, चाहे गुजरात में फसाद हुआ लोग हो, सबसे पहले महफूज मुकाम अगर किसी ने समझा मुसलमानों ने तो वो मालेगांव शहर था। निहाल साहब ने जो लोग मालेगांव में आकर बसे उनको सिर्फ बसने के लिए जगह नहीं दी, बल्कि उनकी बस्तियां बसा के उनको उनके घर का मालिक बनाया। याद रखो, बस्तियां अतिक्रमण में ओपन स्पेस में बस जाती है, लेकिन साथी निहाल अहमद साहब ने सिर्फ बस्तियां बसाई नहीं, वो बस्तियों में रहने वालों को अपने घर का कानूनी मालिक बनाया। उसके बाद उनको रोजगार मिले, ये कोशिश की साथी निहाल अहमद साहब। उस इलाके में राशन दुकान बनवाई ताकि ये सहूलत ले सके। जनता दल जनता पार्टी का वर्कर घर घर घूम के लोगों को राशन कार्ड बनवाता था ताकि वो यहाँ का रहने वाला है, इसका सबूत हो जाए। उसके बाद साथी निहाल अहमद साहब ने 2 स्कूलों का क़याम किया, ज़ाती तौर पे एक जमहूर स्कूल और एक टीएम स्कूल। उसकी वजह यह थी कि वो शहर के 2 किनारे में बसे हुई आबादियाँ थी। जो बच्चे यहाँ आए अपने माँ बाप के साथ, उनको एक महफूज घर भी मिला, उनके माँ बाप को पावर लूम और दूसरी सनत से रोजगार भी मिला, हिफाजत के लिए सबूत के लिए राशन कार्ड भी मिला, और उनके बच्चों को तालीम के लिए स्कूल का भी इंतजाम साथी निहाल अहमद साहब ने किया, जिसको आप सिलसिलेवार जोड़ो कि न सिर्फ एक लाके बसा देने वाला शख्स नहीं था निहाल अहमद, बल्कि उन्होंने उनकी पूरी जिंदगी का इंतजाम कर दिया था कि वो उनको आगे कोई तकलीफ ना आए। यही मुज़फ्फराबाद में जो स्कूल है, जो बाहर से आए हुए लोग थे, उनके बच्चे काबिलियत की बुनियाद पे डॉक्टर बने, वकील बने, टीचर बने, मुअल्लिम बने और बहुत सारे इमाम बने। जैसे इन्होंने बताया अलीम सिद्दीकी साहब ने कि साहिब ने जो एरा 1980 से 2000 तक का था, इसमें जो पैमाना था मस्जिदों का और मदरसों का बढ़ने का, वो सबसे ज़्यादा तेज़ था। उसमें साथी निहाल अहमद साहब की ही रहनुमाई। तो नई बस्तियों में न सिर्फ रोज़गार, घर, तालीम, बल्कि दीनी तालीम का भी इंतज़ाम करने का काम शख्स साथी निहाल अहमद ने किया। आज आप देखेंगे एक किट बांटते हैं 1-2 किलो की, वो 1 किलो में भी 50 लोग फ़ोटो खिंचाते हैं। और साथी निहाल अहमद साहब पुराने लोगों के पास भी बस्तियाँ बसते हुए किसी के पास फ़ोटो नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि उस वक्त कैमरा नहीं था, कैमरे थे, लेकिन तब भी साथी निहाल अहमद साहब ने सिर्फ फ़ोटो कशी का काम नहीं किया, लोगों को काबिल बनाया। मैं एक बार गुलशेर नगर में गई तो वहाँ पे नज़ीर जागली साहब बहुत बुज़ुर्ग थे, इंतकाल कर गए। वो उनको मालूम पड़ा कि मैं आई हूँ, तो उन्होंने बोला कि भाई बोलना साहब की लड़की को मेरे घर आए। मैं जब उनके घर गई, बैठने लगे तो मुझको देख के वो रोने लगे, बोलने लगे कि मुझे साहब की याद आ गई और साहब अब बीमार है, वाले जिंदा थे मेरे, वो आ नहीं पाती हैं, लेकिन बोले तुमको याद है सब? बोले मैं आज भी साहब को मानता हूँ, भले ही मेरे घर के लोग उनके खिलाफ हो, लेकिन जब मैं यहाँ आया था तो ये घर बना के देने वाला निहाल अहमद था। एक घर नहीं, मेरे पास 3-3 घर है, ये 10-10 लाख के घर हो गए। बोले ये मेरे जो आगे की आबादी है उनको एहसास नहीं है ये एहसान कितना किया, 500-500 में लोग बिक जाते, जो जिंदगी भर निहाल अहमद का एहसान नहीं भूल सकते। ऐसा लोग कहा था उस वक्त, मुझे एहसास हुआ था कि आज एक मामूली काम भी करते हैं लोग। फंड कारपोरेशन का हो चाहे असेंबली का हो, हमारे कोई नुमाइंदे के वालिद का नहीं होता, गवर्नमेंट का होता जो टैक्स आवाम देती, उसमें भी ऐसा फोटो खिंचाते, ऐसा बताते जैसे ये अपने घर से पैसा लेते। और जबकि बस्तियां बसाने और बनाने का काम उस वक्त के सोशलिस्ट वर्करों ने किया था। निहाल साहब के साथ
रास्ते पर भगवा झंडे के खिलाफ तिरंगा झंडा लेकर गए और ये बताया कि भाई जब कौम की बात आएगी, मुल्क की बात आएगी तो सबसे पहले हमारा संविधान रहेगा। ये बात को हमने लोगों में बताया। कोई दूसरा सियासी लीडर नहीं आया। मैं तो ये बोलूँगी, तुम दस्तूर की बात करते, जो मजहबी लिबादा ओढ़ के घूमते, जब आहनत रसूल का मामला आता तो वहाँ भी हाजिर नहीं रहते, वहाँ भी पुलिस का इतना डर रहता। तो भगवा झंडे के खिलाफ तिरंगा झंडा ले जाने की इनकी छाती है क्या? ये देखो कि जहाँ हश्र में मुंह दिखाना है वहाँ भी काबिल नहीं बच रहे। कौन कौन लीडर नहीं आया था? मैं इससे पहले भी बोली, मैयत में, रेती में, खड़ी में, ये उद्घाटन में, वो उद्घाटन में लोग फोटो खिंचाते, लेकिन जहाँ आहनत रसूल का मामला आया वहाँ कोई फोटो खिंचाने नहीं आया, क्योंकि उनको मालूम था कुछ ना कुछ होगा तो सरकार माई बाप हमको जेल में लेके जाएंगे, हमारी ताकत नहीं है ले जाने की। इसीलिए वो आहनत रसूल के मामले में भी एहतजाज करने में डरते थे। ऐसे रहनुमा अब बचे हैं मालेगांव शहर। अरे ये तो जाने दो, आज बता रहे दूर अंदेशी की बात, साथी निहाल अहमद साहब की दूर अंदेशी, मौलाना बोल रहे थे कि इन्होंने अपने ज़मीर के साहब ने कभी सौदा नहीं किया। आज के तो सियासी लोग ऐसे हैं कि हमको खुद नहीं मालूम ये कौन से गट में है, शरद पवार के या अजीत पवार के, ये खुद का खुलासा नहीं करते, तो इनका क्या ज़मीर होगा ये देखिए आप। आज तक ये साबित नहीं हुआ ये कौन सी निशानी किसके पास है। वो क्या एक नई निशानी आ गई एनसीपी के पास, ना वो लग रही ना पुरानी लग रही। उनसे शहर नहीं पूछता कि तुम इतनी बड़ी बड़ी बात करते, तुम तो बताओ तुम कौन से ग्रुप में हो जो अपना फैसला नहीं कर सकते। ये मुस्तकबिल में आवाम का क्या फैसला करेंगे, ये सोचने का वक्त आ गया है। बातें हो रही थी, अबुल साहब बहुत गुस्से में बोल रहे थे कि लोग बोलते हैं कि तुम्हारे लीडर साथी निहाल अहमद साहब ने क्या किया। यहाँ आप देखो, जहाँ अकलियत पे जुल्म हुआ, न सिर्फ मालेगांव बल्कि पूरे महाराष्ट्र में सिर्फ वाहिद एक रहनुमा थे साथी निहाल अहमद साहब, जिन्होंने आवाज़ उठाई। जहाँ जुल्म हुआ, यहाँ मुझे एक बात याद आती है, औरंगाबाद में एक बार कस्टडी में एक मुस्लिम नौजवान का इंतकाल हो गया था। साथी निहाल अहमद साहब मालेगांव से औरंगाबाद गए और औरंगाबाद जाने के बाद मेडिकल रिपोर्ट बन गई थी कि वो लड़के को हार्ट अटैक आया और वो लड़के का इंतकाल हुआ। आनन फानन में घर वालों को लाश भी नहीं दी गई। नौजवान 22-24 साल का लड़का था, उसको दफना दिया गया। साहब को जब मालूम पड़ा वो गए और उन्होंने वहाँ एहतजाज किया। एहतजाज करने के बाद फिर से पीएम हुआ। वो इंस्पेक्टर वहाँ जितने लोग काम कर रहे थे जिस वक्त वो कस्टडी में था, सबको सस्पेंड किया गया। ये काम साथी निहाल अहमद साहब का था। अगर एक मुजरिम भले ही वो पुलिस वाला हो, वो छूट जाता तो दूसरे लोगों पर भी जुल्म करने के लिए वक्त वो सोचता नहीं, दूसरे भी बेबाक हो जाते। ऐसी रहनुमाई साथी निहाल अहमद साहब की थी। उन्होंने हर शोबे में अपनी रहनुमाई की, और तालीमी शोबा हो, चाहे मजहबी शोबा हो, समाजी शोबा हो, चाहे सियासी शोबा हो, चाहे कौम मिलत का मामला हो, साथी निहाल अहमद साहब ने अपने हर शोबे में, जैसा इन्होंने बताया कि जेडी में उन्होंने मदद की, तहजीब स्कूल में मदद की। मैं जानती हूँ कि तमाम मुखालफिन के साथ साथी निहाल अहमद साहब के सलूक बहुत अच्छे थे। एक बार मुझको याद है, हम लोग बहुत छोटे थे, मुंबई में बैठे हुए थे साहब पार्टी ऑफिस में, मंत्रालय में ख़त्म हुई आए साहब पार्टी ऑफिस में बैठे थे, पूछ ले कितना बजा था, बोले 2 बज गए। बोले चलो चलो कहीं चलना है। तो बोले कहाँ जा रहा है? बोले चलो चलो। तो जब समझ में आया वो गए ओलंपिया होटल में। बोले क्यों? बोले शब्बीर सेठ वहाँ खाने आता है, वो बम्बई आया है, तो मैं सोचा उससे मिल। तो ये रगबत थी सियासी लोगों की आपस में, और कभी भी एक दूसरे को फ़ायदा पहुँचाने के लिए ये नहीं सोचते थे कि ये मेरा दुश्मन है तो हम इसको नुकसान पहुँचाएं। तो मैं आज बोलती हूँ अबुल ऐस को और ये निहाली वर्करों को, जो लोग 25 साल पहले तुमसे पूछा करते थे कि निहाल अहमद ने क्या किया, आज तुम उनसे पूछो कि निहाल अहमद ने कुछ नहीं किया, तो तुम बताओ 25 साल में क्या उखड़ गया मालेगांव शहर। तुम बताओ कि तुम्हारे लीडर ने क्या किया था, किस शोबे में साथी निहाल अहमद साहब ने अपनी खिदमत अंजाम नहीं दी। आज तुम सवाल करो कि 25 साल में क्या हो गया मालेगांव शहर, जहाँ तुम्हारी बराबरी औरंगाबाद और नासिक से हुआ करती थी। आज तुम्हारा ये हाल हो गया है कि नदी के इस पार और उस पार पे खड़े रहने की हमारी ताकत नहीं। ये सियासी और हमारा डेवलपमेंट का सवाल आया, फंड हमारा
इस्तेमाल होता है नदी के उस पार, उसमें हमको मिलता है क्या, ऊंट के मुंह में जीरा, उसमें भी होंडा रैली निकल के इस्तेकबाल होता है दादा भूसे का। क्या नुमाइंदगी, हमारे नुमाइंदे इस्तेकबाल करने जाते, जहां हमारा करोड़ों रुपये कारपोरेशन का गया, तकरीबन 40-41 करोड़ गया और मिला क्या, 7 करोड़। उसमें हम मुबारकबाद देने पहुंच जाते, क्या बेहिसी है, क्या मुंह दिखाएंगे आवाम को, क्या रहनुमाई कर रहे हैं। अरे आवाम को क्या मुंह दिखाएंगे, ये सब बात 2 नंबर की। आईने में अपनी शक्ल देखते हुए शर्म आनी चाहिए ऐसे लोग, कहाँ है ज़मीर इनका। बहरहाल सबको मर के खुदा को मुंह दिखाना है कहीं ना कहीं। देखो एक बात समझ लो, एक आम आदमी को जिस तरह अपने सवाल जवाब मुश्किल लगते हैं, उससे कई ज़्यादा आवामी आदमी और नुमाइंदे के लिए मुश्किल है, क्योंकि वो सिर्फ खुद का जवाब नहीं देगा, वो जिन लोगों की ओर लेके रखा है ना, उनका सबका जवाब उसको देना है। इसलिए उसके ऊपर ज़्यादा बर्डन है, उसको ये सोचना चाहिए। सादी निहाल अहमद के ताल्लुक से उनके नज़रिया, मैंने ये बताया कि इस निहाली सोच रखने वाले वर्कर, आज कुछ भी वाक़या होता है, 12 नवंबर का वाक़या हुआ, लोग ये बोलते थे कि आज निहाल साहब होते तो ऐसा नहीं होता। लेकिन आज ये समझ लो कि आप निहाल साहब नहीं हैं, लेकिन निहाली सोच जिंदा है। आज हमको निहाली सोच के साथ ये बोल देना, छोड़ देना चाहिए कि आप निहाल साहब नहीं है तो क्या हुआ, अब हम सब निहाल साहब हैं। उनकी सोच है, हमको निहाल अहमद बन के काम करना है, नए लोगों को जोड़ना है। आज आप देखो, जैसे हाशिम रज़ा हमारे साथ है, एहतशाम भाई हमारे साथ है, हमारे साथ तारिक मछली वाले हैं, हमारे साथ नए लोग हैं, आरिफ पापा है, दूसरे जो नौजवान लोग हैं, इनको सब मिल के नए लोगों को बताना है कि साथी निहाल अहमद साहब के सियासी नज़रियात क्या थे। और वही एक नज़रिया है जिसके दम पे तुम बाहर से आने वाले 2 कौड़ी के लोगों का जवाब दे सकते हो। सिर्फ वो नज़रिया है, वो निहाली नज़रिया। इतना दबदबा अपना कायम कर दो कि बाहर से आने वाले 10 बार सोचे तुम्हारी बस्तियों में तुम्हारे लोगों के खिलाफ बोलने के लिए। आज वक्त आ गया है, जैसे बोला गया था डिजिटल वक्त है, तो अब हमारे लिए और आसान है। आज लोगों से रब्ता करना बहुत आसान हो गया है पहले की बनिस्बत। हमारे पास 10 मौके हैं जहां हम फ़ौरन अपने ख़यालात, हमारे नज़रियात लोगों तक पहुंचा सकते हैं। लोगों को जोड़ना चाहिए, न सिर्फ सियासी बेदारी होना चाहिए। देखो सियासी बेदारी अगर खिदमत खल्क के बगैर है तो वो ऐसा जिस्म जो बिना रूह के। हर सियासी काम ये होना चाहिए जिससे आवाम को फ़ायदा हो। अगर फ़ायदा सिर्फ मेरी ज़ात के लिए हो तो वो बेकार। अगर मेरी ज़ात के अलावा तुम सबके लिए है तो वो फ़ायदेमंद है हमारे लिए, और वही नीयत से काम करेंगे तो इंशाअल्लाह हमारी पार्टी वही दबदबा जो जिस दबदबे की तरफ जा रही है, इंशाअल्लाह उसमें हम कामयाब होंगे। आप सब, आज मैं देख रही हूँ तमाम मदरसों में मालेगांव शहर के बहुत प्रोग्राम हैं, इसके बावजूद लोग यहाँ पर आए और साथी निहाल अहमद साहब की बातें इतनी दिलचस्पी से सुनी। मैं एक बात मानती हूँ, साथी निहाल अहमद साहब एक ऐसी शख्सियत है कि जिनके बारे में बोलते हुए अल्फाज भी कम पड़ेंगे, किताबों के औराक भी कम पड़ेंगे। हर आदमी के पास एक अलग साहब की स्टोरी है, एक अलग कहानी है। इसलिए साथी निहाल अहमद साहब की जो एक सबसे बड़ी बात थी कि जुल्म और सितम को कभी बर्दाश्त न किया जाए। हमेशा सरपसंदों की आंख में आंख डाल के जवाब देना, ये उनका शेवा रहा है, जिसको जनता दल के लोग अब समाजवादी में शामिल हो गए हैं। अबू आसिम आज़मी साहब हर तरह से कोशिश कर रहे हैं कि वो मालेगांव की जो दबी कुछ डरपोक नुमाइंदगी है उसको कैसे भी वो अपने दम से मालेगांव की नुमाइंदगी अहवान में करें, और वो कर रहे हैं। मैं धूलिया में एक प्रोग्राम में गई थी समाजवादी पार्टी के, जिस दिन राम मंदिर का उद्घाटन था। उस दिन एक बुजुर्ग शख्स थे, वो तकरीर कर रहे थे। वो बोल रहे थे कि 25 साल से आसिम भाई ये ख्वाब देख रहे थे कि साथी निहाल अहमद साहब के साथ काम करने का मौका मिले, लेकिन अब 25 साल के बाद ये मौका मिला कि साथी निहाल अहमद साहब का ख़ानदान हमारे साथ जुटा है। शायद उसी के लिए वही कदर करते हुए अबू आसिम साहब हर बार ऐवान में जब खड़े होते हैं तो कुछ ना कुछ मसला मालेगांव का वो पहले से पूछ के अपने से मालूमात लेके बोलते तुम्हारे यहाँ ये होना चाहिए, तुम्हारे यहाँ वो होना चाहिए। वो एहसास रखते हैं मालेगांव शहर। अब हमको भी एहसास रखना चाहिए कि दूर बैठा है एक नुमाइंदा जो अपनी नुमाइंदगी कर रहा है, और एक जिनको हमारी वोट ज़बरदस्त वोट मिलने के बाद वो हमारी क्या नुमाइंदगी।
یہاں میری بات سنی، میں آپ کی شکر گزار ہوں۔